Students, today we discuss 5 rules for finding integrating factor. Integrating factor क्या होता है? जिसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन से, then that equation become exact. मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर इज ए फैक्टर व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर इक्वेशन बिकम exact. So equation exact कब होती है? When we find curly m upon curly y is equal to curly n upon curly x. If these two are equal, then equation is exact. If equation is not exact, then we find integration factor and multiply that equation by integrating factor, और जो resulting equation है वो क्या हमारी बन जाती है? Exact equation. So we have 5 rules. In first rule we have if m dx plus n dy equal to 0. जो हमारी इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 इस क्या है बेटे? होमोजीनियस है इन x and y. You know m and n are functions of x and y. तो वो हमारे क्या है? होमोजीनियस है x और y. Then we apply rule 1. अगर होमोजीनियस है तो हम रूल 1 अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा? 1 upon m into x plus m into 1. What are m and n? We compare from this our equation and multiply m by x and m by y. Then that is our integrating factor. So when equation is homogeneous, then our integrating factor is 1 upon mx plus ny, provided what we have condition that this factor is not equal to 0, because अगर नीचे 0 आ जाती है then that become not defined. So बेटे कंडीशन क्या है? जो हमारा फैक्टर है this is not equal to 0. So क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. We have x square y dx minus x cube plus y cube dy equal to 0. So in this equation firstly we check whether this is homogeneous or not. Yes, 2 और 1 हमारी homogeneous है. इसकी पावर में 3 है, इसकी पावर में 3 है. So this is homogeneous in x and y. So पहले हम क्या करते हैं? इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से. कैपिटल m dx प्लस m dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में. उसके अकॉर्डिंग बेटे dx का कोफिशिएंट कैपिटल m हो जाता है और dy का कोफिशिएंट क्या हो जाता है? m. तो माइनस साइन के साथ में लेंगे बिकॉज जो जनरल इक्वेशन है उसमें हमारे पास प्लस साइन है. So this become minus x cube minus y cube. So these are capital M and n functions of x and y. So these functions are homogeneous. So this means we apply rule 1. According to that, our integrating factor is I dot f is integrating factor 1 upon mx plus ny. क्योंकि ये homogeneous आ गई थी इसलिए हम अब इसको क्या कर रहे हैं? रूल 1 अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए. What is m? x square y. क्या मल्टीप्लाई करना है उससे x को? तो ये क्या बन गया? x क्यूब y प्लस n इंटू वाई. जो n फैक्टर है उसको y से करना है तो माइनस एक्स क्यूब y आ जाएगा माइनस y भी 4 आ जाएगा. अगर कुछ सॉल्व होता है इसको सॉल्व कर देंगे. यस, यू कैन चेक दीस टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स विद नेगेटिव पॉजिटिव साइन. सो दिस मींस ये कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विद ओनली minus 1 upon y by 4. So this is our integrating factor. Next is to multiply this factor by equation. जो हमारे जो जनरल इक्वेशन है this one, इसको आप नंबर दे सकते हो. 1 इक्वेशन को इस इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है. पूरी इक्वेशन को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटे. So this become x square y upon minus y by 4 dx minus x cube plus y cube upon minus y by 4 dy equal to 0. तो ये दो नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव बन गया और टर्म्स को सेपरेट कर लिया. यहाँ पे एक y कैंसिल हो गया बेटे. यहाँ पे ये एज इट इज रहेगी और यहाँ पे 3 y कैंसिल होकर ओनली 1 upon y dy रह गया और जो नेगेटिव साइन था वो हमारा प्लस बन गया बिकॉज बाहर में नेगेटिव साइन. Now on multiplying by integration factor our equation is exact equation. You can check. कैसे चेक करते हैं? By finding m curly m upon curly y equal to curly m upon curly x. When they are equal, then equation is exact. और हमारी equation क्या आ रही है? Exact आ रही है, which is exact equation. So its solution is कैसे किया था? Integral m dx. Capital M dx लिखेंगे प्लस टर्म्स इन m without x. जो x के बिना वाली टर्म है उसको हम लेंगे तो वो हमारा क्या है? विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेशन कर d इक्वल टू c. दिस इज आवर सॉल्यूशन. यस, व्हाट इज इंटीग्रल m? m इज x स्क्वायर y और dx हमारा क्या आ रहा है? सॉरी बेटे यहाँ से देखना है हमने
इन दिस इक्वेशन फ्रॉम हियर दिस इज नंबर 2। इसको हमने यहाँ पे अभी एक इक्वेशन एग्जैक्ट आई है, इससे देखते हैं। सो इन m क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स प्लस टर्म्स इन n विदाउट x। तो ये तो x वाली टर्म है, ओनली क्या है हमारे पास 1 अपॉन y। सो 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू c। सो n में हम कौन सी टर्म लेते हैं जो हमारी विदाउट x टर्म होती है, दूसरी हम छोड़ देते हैं। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। और ये लेंगे कहाँ से, जो हमने इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन ली है। नाउ वी इंटीग्रेट दीस टू टर्म्स। यहाँ पे x वेरिएबल है तो ओनली x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी x क्यूब बाई 3 और माइनस 1 अपॉन y क्यूब एज इट इज। यहाँ पे y वेरिएबल है तो 1 अपॉन y की इंटीग्रेशन क्या आएगी log y इज इक्वल टू c। और यू कैन से तो ये क्या आ गया, इसमें आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारा क्या आ गया माइनस x क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो फर्स्टली वी चेक होमोजेनियस है, देन अगर होमोजेनियस है देन वी अप्लाई रूल 1 upon mx plus ny। देन ऑन फाइंडिंग दिस इंटीग्रेशन फैक्टर वी मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन। जो हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन एग्जैक्ट है और उसका सॉल्यूशन क्या है इंटीग्रल m ds प्लस टर्म्स इन n विदाउट x। और इंटीग्रेशन विदाउट x है तो सिर्फ y वाले टर्म्स है, सो वेरिएबल इज ओनली y dy इज इक्वल टू c। Another question, if y cube minus 2yx square dx plus 2xy square minus x cube dy is equal to 0. So again you can check from here 3, यहाँ पे भी 3 पावर 1 भी है, यहाँ पे भी 3 and 3. This means this is homogeneous in x and y. हम x और y को चेक करते हैं. So this is homogeneous. This means we can apply rule 1. Then firstly we compare with this general equation capital M dx plus n dy equal to 0. On comparing we have n is dx का coefficient, what is n coefficient of dy. Next is to integrating factor. Integrating factor is 1 upon mx plus ny because ये हमारी homogeneous है. Yes, what is n this factor? Multiply by x, so this become y cube x minus 2yx cube. Similarly n को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे y से. कुछ कैंसिल हो रहा है ये हमें चेक करना है। वी हैव y क्यूब x और यहाँ पे ये पढ़िए y क्यूब x, दोनों ही बेटी एक 1 है एक क्या है इसका कोएफिशिएंट 2 है, दोनों को ऐड कर दिया कितना बन गया 3y क्यूब x। और यहाँ पे ये क्या है yx क्यूब yx क्यूब, ये भी दोनों क्या बन गई माइनस 3x क्यूब y। तो दोनों ही 3 टाइम्स आ रही है, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और x मतलब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/3 x y क्यूब 3x क्यूब y। ये हमारे पास ऐसे सॉल्व करने पे आ रहा है। तो 3xy हमने इसमें से कॉमन ले लिया बेटे, सो हमारे पास क्या रह गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो कुछ भी आ सकता है। सो नाउ दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई दिस बाय जो गिवन इक्वेशन है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे देखो हमने इसको ऐसे लिख लिया और हमने क्या किया बेटे, जैसे इस फर्स्ट फैक्टर में से y कॉमन आ है, सिमिलरली सेकंड वो सिर्फ कैलकुलेशन की। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दोगे, ये y से y कैंसिल कर दिया और x से x कैंसिल कर दिया। सो ये हमारे पास क्या आ गई टर्म। सो दिस इक्वेशन इज नाउ एक्सैक्ट इक्वेशन बिकॉज this equation is multiplied by integration factor. So this is exact equation you can check by finding curly m upon curly y, and this should be equal to curly n by curly x. Next, when they are equal, equation is exact and its solution is integral m dx. What is n? This whole term integral m dx. 3 आप बाहर ले सकते हो because constant है. Now in n we require term without x. तो आपने इसको देखना है सॉल्व करके भी without x टर्म्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है हमारी। तो वो हमारे टर्म क्या आ रही है 1/3 अगेन कांस्टेंट है, dy और y आ रहा है और दूसरी साइड क्या होता है c। और ये कैसे आ रही है आप इसमें चेक करोगे बेटी, सिर्फ 1/3 बाहर ये टोटल टर्म्स हैं तो आपके पास क्या है 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऊपर है और नीचे कितना आ रहा है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या बन गया y बाहर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ऐसे इसके नीचे भी आ जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे टर्म आ गए। तो इसमें आपके पास देखो ये y कैंसिल हुआ है तो ये टर्म विदाउट x नहीं है, इसमें ये टर्म हमारी नहीं आएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। इसको फर्दर फिर दोबारा हम लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं माइनस x स्क्वायर अपॉन ये क्या आ रहा है देखो y क्यूब और ये क्या आ रही है माइनस
वाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो ये टर्म है इसमें आपका ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे आएगी टर्म, तो ये आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव साइन है तो ये क्या बन गया +1/y। सो दिस मीन्स हमने टर्म लेनी है विदाउट एक्स, तो वो हमारी टर्म क्या आ रही है 1/y एंड dy है, बिकॉज एक्स इज कांस्टेंट, उसको हमने लेनी नहीं, विदाउट एक्स टर्म लेनी है, सो वेरिएबल इज y। नाउ वी इंटीग्रेट दिस, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए अगेन आप इसको टर्म को ब्रेक कर लोगे बेटे, ये हमारी ऑलरेडी हुई, तो इसमें तो हमें पता है log x की इंटीग्रेशन होगी, पर इसमें क्या है वेरिएबल इज x, तो हमारे पास ऊपर -2x होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है, देन इंटीग्रेशन क्या हो जाती है log ऑफ फंक्शन जो नीचे फंक्शन है, सो इसकी आगे log ऑफ x जो हमने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, log ऑफ y स्क्वायर - x स्क्वायर log y, और 1/3 जो दोनों के साथ, नाउ log के रूल लगा रहे हैं बेटे हम इसमें, तो ये जो देखो क्या है 3 है उस साइड चला जाएगा, 3c बन गया, और क्या है हम 2 भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 log y बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगी पावर, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया, और ये y स्क्वायर - x स्क्वायर, और जो 2 आपने यहाँ पे एलसीएम लिए 6 आ गया, तो यहाँ पे 6c बन गया। ये फर्दर आप कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है। नेक्स्ट अब log हटाना है, अगर आपने जब log हटाना उस साइड हमारा log नहीं है तो वो e की पावर बन जाएगी, इसको फर्दर हम कांस्टेंट है, हम एक नया नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू c। So this is our required solution. So for rule 1 we have to check homogeneous. If that is homogeneous, then we apply integration factor 1/mx plus ny, multiply by this factor, and resulting equation is exact, and its solution is on solving you get required solution.